Hello friends, this lecture is very important because here we are going to take a decision how to give the debit and credit with the help of the traditional approach. ओके आपको याद होगा मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए थे डेबिट क्रेडिट के। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है वापस बताता हूँ आपको। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Then what is the rule of the real account? Debit what comes in, credit what goes out. And what is the rule of this nominal account? Debit expenses and losses, credit incomes and gains. Now this chart will help you in understanding how to decide the debit and credit for the transactions. So this actually chart is having 8 columns: serial number, transactions, two aspects or two effects are there, accounts involved, then classification of the account, rules applied, account to be debited and account to be credited. This is called as the traditional approach. There are two approaches. Now this lecture we are going to learn about the traditional approach. नंबर वन इज कमेंस्ड बिजनेस। यहाँ पे देखो नंबर वन पे commence business with cash rupees 50,000. So whenever we are starting with the business, we are supposed to put certain money in the business which is becoming our capital. So money which we are putting in the business is called as a capital. म्हणजे आपलं ते भांडवल असतं, वो हमारा भांडवल है या आप बोल सकते हो कैपिटल है. टू एस्पेक्ट्स आर कैश कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश आया. And who brought? Proprietor is a giver of the capital. Proprietor is giver of capital. Then two accounts are, one is a cash account obviously and second account is a capital account. आपको ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट दिखता है लेकिन कैपिटल अकाउंट दिखता नहीं है, तो मतलब हमको फाइंड आउट करना है कि भाई सेकंड अकाउंट कौन सा है. सेकंड अकाउंट इज अ कैपिटल अकाउंट. क्लासिफिकेशन: cash account is a real account and capital account is a personal account. Why personal account? Because it is proprietor's capital, somebody's capital. So it is a personal account. Personal account है वो. Actually it is a representative personal account. You might be remembering that there are three types in personal account also: natural personal account, artificial personal and representative personal. Out of that, capital is a representative personal. Now what is the applicable rule for cash? Debit what comes in. So cash comes in, debit what comes in. Accordingly देखो cash is debited. Then what is the rule for capital? It is a personal account, तो उसका रूल आपको बोलना चाहिए credit the giver, credit the giver. Accordingly capital account is credited. Okay, so cash account is debited and capital account is credited. मतलब ये जो लास्ट के दो कॉलम्स है, this is called as a decision making. Okay, applying the rule of debit and credit. Second is given to you, that is a advertisement paid 5,000 rupees to Imran. Now the advertisement paid to Imran or it is paid to Prakash, it is paid to anybody else, that makes no difference because you are doing the payment to somebody, anybody in cash for the purpose of advertisement. Here two aspects are: advertisement is our expenses and cash goes out. इमरान का कुछ नहीं करना है बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट कैश ट्रांजेक्शन. देखो अगर आपने कैश में मोबाइल परचेस किया तो आपको वो व्यक्ति का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं ना. यू आर गेटिंग द मोबाइल एंड यू आर गिविंग द कैश. सिंपल. So two aspects are: one is advertisement is an expenses and cash goes out. Two accounts are: one is the advertisement account and another is a cash account. Now advertisement account is which kind of account? Nominal. Why? Because advertisements, that is our expenditure, वो हमारा expenditure है. While cash is a real account because cash is asset, so it is a real account. Well, now what is the rule applicable of nominal account for this advertisement? Debit all expenses and losses. The rule of the nominal account is debit all expenses and losses. Accordingly, advertisement account is debited. And for cash, credit what goes out. Credit what goes out. Accordingly, cash account is credited. Cash को हमने क्या किया? Credit किया है.
Now let us proceed with the number 3. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, हमने कैश भरा बैंक ऑफ इंडिया में. नाउ टू एस्पेक्ट्स आर, बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर. बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिसीवर है. वाइल कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस, मतलब हमने हमारा पैसा कैश निकाला, ओके, काउंटर से, काउंटर में होता है या आपके सेफ में होता है, वो पैसा निकाला और बैंक में जमा कर दिया. ओके, so here Bank of India is a receiver because we are depositing the cash. So Bank of India is a receiver and cash goes out. Now two accounts are, one is a Bank of India account, another is a cash account. Bank of India नाम है ना वो, that's why personal account. It is an artificial personal account. But here you are supposed to say only either personal और रियल और नॉमिनल, तीन में से एक कैटेगरी है. कैश अकाउंट इज ऑलवेज रियल अकाउंट बिकॉज दैट इज ऑलवेज एसेट. नाउ व्हाट इज द रूल एप्लीकेबल फॉर बैंक ऑफ इंडिया? बिकॉज इट इज अ रिसीवर, सो रूल एप्लीकेबल इज अ डेबिट द रिसीवर. पर्सनल अकाउंट का रूल है ना, देखो हर कोई अकाउंट के रूल में दो दो स्टेटमेंट्स है. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या आता है? डेबिट द रिसीवर. Accordingly, Bank of India account is debited. Now for cash, it goes out. So, sorry, credit what goes out. Accordingly, cash account is credited. Cash account is credited. Okay. Number 4 में देखो अभी. Purchase goods from Sunil 13,000. Very important. आपने गुड्स परचेस किया है तो सबसे पहले यहाँ पे परचेस अकाउंट आता है. When goods are purchased, it is a purchase account. When goods are sold, it is a sales account. लेकिन देखो, अगर आपने मशीनरी परचेस किया तो परचेस अकाउंट नहीं बोलते, मशीनरी अकाउंट बोलते. अगर फर्नीचर सेल किया, नो सेल्स अकाउंट, इट इज अ फर्नीचर अकाउंट. सो परचेसेस अकाउंट इज एप्लीकेबल फॉर स्पेशली व्हेन गुड्स आर परचेस्ड. नाउ इट इज सो परचेज फ्रॉम सुनील एंड इट इज नॉट मेंशन्ड that it is cash is paid or not. ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन किया नहीं है. सो इट इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ये जो है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. सो व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? नंबर 1 इज द परचेसेस. परचेसेस इज एन एक्सपेंस while it is purchased from Sunil, so Sunil is giver. परचेस हमारा एक्सपेंसेस है, ओके, और ये सुनील क्या है? हमारा गीवर है. ये पावर कंजम्पशन का मैसेज इग्नोर करो, ये मोबाइल को अपने आप में क्या पड़ी होती मुझे मालूम नहीं है, उसको छोड़ दो आप. सो सुनील इज गीवर. नाउ टू अकाउंट्स आर, वन इज अ परचेसेस अकाउंट, अदर इज अ सुनील्स अकाउंट. परचेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. सुनील अकाउंट नाम है ना, तो पर्सनल अकाउंट. परचेस अकाउंट वाई नॉमिनल अकाउंट? बिकॉज दीज आर एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ nominal account. What is the applicable rule for purchases? Debit all expenses and losses. Actually complete statement ऐसा ही है, debit all expenses and losses. So accordingly purchase account is debited while Sunil is a giver. According to the personal account rule, credit the giver. So Sunil account is credited. देन द नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश. अब देखो सोल्ड गुड्स है तो सेल्स अकाउंट आएगा. एंड वन मोर अकाउंट इज ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट. यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम दिया नहीं है, दिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, ओके, बिकॉज इन केस ऑफ डायरेक्ट कैश ट्रांजेक्शन द पर्सनल अकाउंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड. ओके, वी आर गोइंग टू टेक टू अकाउंट्स, वन इज अ कैश अकाउंट, अदर इज अ सेल्स अकाउंट. Now whenever we are selling the goods, cash comes in. आपने माल बेचा है तो आपको पैसा मिलने वाला है, cash comes in. And sales is an income. Sales हमारा क्या है? इनकम है. Sales is an income. So two accounts are, one is a cash account, other is a sales account. Cash account and sales account. Cash account always real account. अभी ये ध्यान में रखना चाहिए. So cash account real account है, asset है अपना. सेल्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. वाई? बिकॉज दैट इज अवर इनकम, वो हमारा इनकम है. ओके, रूल फॉर कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन.
पैसा आ गया ना, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट इज डेबिटेड. एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का पूरा रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. So credit all incomes and gains. Accordingly, sales account is credited. So cash account is debited and sales account is credited. Then the next, received commission 4,500. आपको कमीशन मिला. कमीशन मिला मतलब पैसा मिला, कैश मिला. यू आर गेटिंग द मनी. Now here you are getting the commission, so cash comes in. आपको कमीशन मिल रहा है, so cash comes in. And commission is our income. Commission received is the income. Okay. So what are the two accounts? One is the cash account, another is the commission account. Cash account is always real account because that is asset. What is the rule applicable? Debit what comes in. Comes in है ना, इसलिए debit what comes in. And what is the rule for the commission account is a credit all incomes and gains. Because commission received is our income. हमारा वो income है. So credit all incomes and gains. Accordingly commission account is credited. यहाँ पे अगर आपने देखा, मतलब ये तो आपको बना बनाया दिया है आपके टेक्स्ट बुक में. ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन नंबर 2, एडवर्टीजमेंट पेड टू इमरान. हियर इमरान अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड. द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इज ओनली कंसिडर्ड एंड दैट्स वाई इन नंबर टू में हमने क्या किया था, आपको मैं वापस दिखाता हूँ. हमने दो अकाउंट लिया था, एडवर्टीजमेंट एंड कैश, है ना. वी टुक एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट. ओके, नॉट इम्रान अकाउंट. इम्रानचा काही संबंध नाही. इम्रान इज नॉट कन्सर्न. इम्रानचा काही संबंध नाही जरी त्याला दिलेले असले. अँड ट्रान्झॅक्शन नंबर 4, दिस इज कन्सिडर्ड एज अ क्रेडिट सेल्स बिकॉज नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन एंड सेल फॉर कैश इज नॉट गिवन. ओके, नंबर 4 में यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो परचेज चाहिए. परचेज फॉर कैश इज नॉट गिवन. परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, मैंने बोला था ना आपको, हियर इट इज नॉट मेंशन दैट इट इज परचेज फॉर कैश. दैट्स वाई परचेसेस अकाउंट एंड सुनील अकाउंट इज देयर. अभी प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है वो देखते हैं. देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 4 में दिस इज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट सेल्स. ये सेल नहीं है, परचेज चाहिए. बिकॉज नेम ऑफ पर्सन इज गिवन एंड सेल फॉर कैश, परचेज फॉर कैश चाहिए, is not given. Anyway, so that is a mistake which is given to you. Now we are going to solve the exercise question. Okay, activity question एक solve करेंगे. Activity दिया आपको, activity number 2. ये जो activity number 2 है, ये हम लोग देखते हैं क्या दिया है. That exactly I want to explain to you. इसको ज़रा ज़्यादा जूम हो गया, मैं कम करके आपको ये समझाने वाला हूँ one by one. This is the activity which is given to you. Activity number 2, traditional approach, analysis of transaction by applying rules of debit and credit. अभी जो देखा वही वापिस, मतलब एक एग्जाम्पल देखने वाले. One more example also I am going to explain. Again same 8 columns are there. This is practice for you. I am requesting you to write down this. ये आपको लिखना है मेरे साथ. अगर मेरा आपको स्पीड ज़्यादा लगता है तो आपको पॉज कर करके लिखना है. नंबर 1, commenced business with cash ₹90,000. Commenced, that is started business with cash ₹90,000. Here cash comes in and proprietor is a giver. cash comes in मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है and proprietor is a giver. Two accounts involved. कौन से accounts involved है? One is a cash account obviously and another is a capital account. Because whenever proprietor is becoming giver, that means actually he is bringing the capital. Okay. Then cash account is real account. Capital account is a personal account. What is the applicable rule? Okay, cash comes in है ना, तो आपको कम्स इन वाला रूल, मतलब रियल अकाउंट का कम्स इन वाला रूल बोलना चाहिए. डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. सो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट इज डेबिटेड. सेकेंडली कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. ओके, इट इज ऑलवेज गिवर, वो ऑलवेज गिवर होता है. सो अकॉर्डिंगली क्रेडिट द गिवर. क्रेडिट द गिवर क्या करना चाहिए? क्रेडिट द गिवर
एंड सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसके पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने अकाउंट्स हेड उसकी कैटेगरी, उसका टाइप ऑफ द अकाउंट और पक्का डेबिट किसको होता है, पक्का क्रेडिट किसको होता है और किस तरह से होता है वो सब मैंने ऑलरेडी बताया आपको। वहाँ पे मैंने बोला था कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ऑलवेज, बिकॉज कैपिटल इज ऑलवेज गिवर। ऑन द कॉन्ट्ररी ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड। परचेसेस, परचेसेस के बारे में मैंने बोला था ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज परचेसेस आर एक्सपेंसेस। सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड बिकॉज दैट इज आवर इनकम, लाइक दैट। वो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा फॉर द डिसीजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ना नंबर 2 यहाँ पे हाँ क्रेडिट द गिवर आएगा, सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। नंबर 2 डिपॉजिटेड कैश विद देना बैंक 9,000। पिछले प्रॉब्लम में बैंक ऑफ इंडिया था, यहाँ पे देना बैंक है। हमको क्या चाहिए, देना बैंक हो या लेना बैंक हो, ओके तो वो बैंक है। नाउ हियर देना बैंक इज रिसीवर बिकॉज वी आर डिपॉजिटिंग द मनी, हम लोग पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं म्हणून काय झालं, देना बँक रिसिव्हर झालं अँड कॅश काय झालं, गोज आउट झालं। कॅश गोज आउट म्हणजे बिझनेसमधनं कॅश आपण बँकेत भरली, बँक इज रिसिव्हर अँड कॅश गोज आउट। टू अकाउंट्स, देना बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। देना बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, नाम है ना वो बैंक का, देना बैंक, ओके। एंड कैश अकाउंट इज ऑलवेज रियल अकाउंट। Now here the applicable rule, as Dena Bank is receiver, so accordingly debit the receiver. Personal account का जो rule है debit the receiver, so Dena Bank account is debited and credit what goes out for cash. Cash account is a real account and it goes out, so credit what goes out, so cash account is credited. So Dena Bank account is debited and cash account is credited. These last two columns are important because here we are deciding the debit and credit. For the transaction deposited cash with देना बैंक, हमको तुरंत पता चला बैंक में पैसा भरा, बैंक इज रिसीवर, इस तरह से आएगा। देखो देना बैंक अकाउंट, बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज रिसीवर डेबिटेड। सेकेंड कैश अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिटेड। तो ये जो 4 फिंगर प्लान है ना वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी तरह से, ओके। चलो देखते हैं 4 फिंगर मैंने क्यों बोला। देखो ट्रांजैक्शन के बाद ये 4 ही कॉलम है ना, 1 2 3 एंड 4, लेकिन वो ओरल इस तरह से बात करते। चलो आगे नंबर 3 देखते हैं। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 1,500। पर्सनल यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक पर्पस, दे आर बिकमिंग योर ड्राइंग्स, ओके। सो हियर प्रोपराइटर इज रिसीवर। अभी प्रोपराइटर क्या हो गया, रिसीवर हो गया, क्योंकि वो बिजनेस में से कैश निकाल रहा है, बिजनेस में से कैश वो निकाल रहा है। एंड व्हाट इज अबाउट कैश, कैश गोज आउट, कैश तो गोज आउट है। सो अकॉर्डिंगली देर आर 2 अकाउंट्स, वन इज अ ड्राइंग्स अकाउंट because actually cash or goods taken from the business for personal use is called as a drawings. ड्राइंग, ये वो वाला ड्राइंग नहीं, ये वो वाला ड्राइंग नहीं, आप ड्राइंग निकालते वो वाला नहीं। ड्राइंग का मतलब यहाँ पे क्या है, आपने बिझनेस से पैसा उठाया खुद के लिए, तुम्ही बिझनेसमधून स्वतःच्या वापरासाठी पैसे घेतलेले आहेत, तर त्याला ड्रॉइंग असं म्हणतात, ओके। बऱ्याच लोक असं करतात की बाबा मुलाची कॉलेजची फी भरली, स्कूलची फी भरली किंवा घरात पैसे लागले, ओके, लाईक दॅट। अँड सेकंड अकाउंट इज अ कॅश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. Why? Because this is a drawing made by proprietor. Okay, it is somebody's drawing. That's why it is personal account. Cash account is always real account. ये तो अभी आप जान ही चुके हैं. What is the applicable rule of personal account? Proprietor is the receiver, so accordingly debit the receiver. So drawings account is debited. Then cash account, real account, it goes out. That's why credit what goes out. So cash account is credited. Okay. Number 4,
नंबर 4 पे दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार 12,000। हियर परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट आएगा फ्रॉम मंदार एंड इट इज़ नॉट गिवन फॉर कैश, तो मंदार अकाउंट आएगा। सो परचेसेस इज आर एक्सपेंडिचर वेल मंदार इज गिवर। परचेस हमारा एक्सपेंडिचर है और मंदार हमारे लिए माल देता है, म्हणजे मंदार आपल्याला देतो, गिव्हर झाला तो। सो परचेस अकाउंट इज देअर अँड अनादर अकाउंट इज मंदार अकाउंट। एक अकाउंट परचेस अकाउंट आहे, दुसरा कुठला आहे मंदार अकाउंट। परचेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज दिस इज एक्सपेंडिचर, सो नॉमिनल अकाउंट। वेल मंदार अकाउंट नाम है ना, वो पर्सनल अकाउंट है। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेबल रूल फॉर दिस? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंडिचर है तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड मंदार इज गिवर, सो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अकॉर्डिंगली परचेसेस अकाउंट इज डेबिटेड अँड मंदार अकाउंट इज क्रेडिटेड, मंदार अकाउंटला क्रेडिट पडलं, बरोबर। नंबर 5, पेड सैलरी ₹2,900, सैलरी का हमने पेमेंट किया है 2,900, ओके। अकॉर्डिंगली सैलरी क्या है? सैलरी मतलब हम लोग पेमेंट करते हैं ना किसी का। सो सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, सैलरी हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है बिकॉज वी आर गिविंग द सैलरी, ओके। आप वैसा मत सोचो आपके पेरेंट्स को सैलरी मिलता है। फॉर योर पेरेंट्स इट इज इनकम, but for company which is giving them salary, for them it is expenditure, and we are thinking from the viewpoint of company or from that business. So salary is an expenditure, and salary दिया मतलब क्या दिया? कैश दिया। Of course you can pay by check also, लेकिन मैंने अभी इनिशियल है ना ये, तो वो चेक से दिया, ये बाद में हम लोगों को देखना है। Then we can also see it is paid by check or it is paid by Google Pay, पेटीएम करो या बैंक ट्रांसफ़र किया है, चेक दिया है, लाइक दैट। हियर अजम्पशन इट इज पेड इन कैश, कैश में पे किया, ऐसा ही अजम्पशन होता है। द सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, कैश गोज आउट। टू अकाउंट, सैलरी अकाउंट इज देयर, अनदर अकाउंट इज अ कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। वाई? बिकॉज दैट इज एक्सपेंडिचर, while cash account is real account, okay. What is the applicable rule for salary? Debit expenses and losses because that is expenditure, and cash के लिए credit what goes out because the cash goes out of business. Accordingly salary account is debited while cash account is credited. Number 6, received interest, ये अभी आपको इनकम मिल गया, ओके। आपल्याला इंटरेस्ट मिळालं, हमको इंटरेस्ट मिला है, ये आपको इनकम मिला है 4,000। इंटरेस्ट मिला मतलब क्या मिला? कैश मिला। सो व्हाट इज द कैश अकाउंट? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, ओके, एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम, इंटरेस्ट इज एन इनकम। सो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट इज देयर, अनदर अकाउंट इज इंटरेस्ट अकाउंट। Now, cash account is a real account, while interest account is nominal account. Why? Because that is our income. What is the rule applicable for cash? Debit what comes in. And what is the rule applicable for this interest is credit incomes and gains. तो देखो कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है और ये जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन एक्टिविटी नंबर 2, ओके। मैं अभी ये लेक्चर आपको समराइज करने वाला हूँ, ओके। 4 फिंगर प्लान बताने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना ज़रूरी है, ओके। चलो चालू करते हैं 1 बाय 1 अगेन। आपके सामने है, देखो मैं अभी 4 फिंगर्स में बताने वाला हूँ, अच्छी तरह से आपको सुनना है। कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 4 फिंगर्स, फाइंड आउट 2 अकाउंट्स, वन इज अ कैश अकाउंट, वो क्या है? रियल अकाउंट। क्या है? कम्स इन डेबिटेड। वाई? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट को डेबिट करो। सेकंड इज कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ऑलवेज गिवर, क्रेडिटेड। वाई? बिकॉज क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। मतलब ये मैं समराइज करके बोल रहा हूँ,
ये जो 4 कॉलम है ना, 1 2 3 4, इसको मैं पूरा समरी करके बोल रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे फिर डायरेक्टली हम लोग डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं। उसके आगे एडवर्टीजमेंट पेड टू इमरान, इसका समरी कैसे आएगा देखो अच्छी तरह से। 2 अकाउंट्स, एडवर्टीजमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। ओके, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी मेरे साथ बोलो। एडवर्टीजमेंट अकाउंट, nominal account, okay, expenses and losses, debit, why debit, because debit all expenses and losses, so हमने डिसाइड किया एडवर्टीजमेंट को डेबिट करो। सेकंड, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, गोज आउट क्रेडिट। ये आपको थोड़ा सा पंडित जी के जैसे आपको लगेगा, जसे एखादा ब्राह्मण बोलतो तसं तुम्हाला वाटेल, रट, पण यू विल एन्जॉय दॅट, तुम्ही पण तसंच म्हणा, रट. Now the next is हाँ देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 10,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे 2 अकाउंट्स कौन से हैं, पहले वो जानना सीखो, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड कैश अकाउंट। नाउ 4 फिंगर प्लान, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर, डेबिट, वाई डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. Then cash account, real account, goes out credit. Why credit? Credit what goes out, like that. Number four, purchase goods from Sunil. One is a purchase account, another is a Sunil account. No cash, because it is not mentioned, it is purchase for cash. So purchase account, nominal account, expenses and losses, debit, because the rule is debit expenses and losses. Sunil account, personal account, he's a giver, credit. Okay, then the next number 5, sold goods for cash. यहाँ पे भी 2 अकाउंट आएंगे, one is a cash account, other is a sales account. अब 4 finger plan, cash account, real account comes in debit, then sales account, nominal account, our income, credit. Okay, number 5, number 6 देखो, received commission 4,500, कमीशन मिला मतलब कैश मिला। 2 अकाउंट्स कौन से हैं, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट. नाउ हाउ टू से कैश अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट. Okay, rule debit what comes in, commission account, nominal account, income credit. Why? Credit all incomes and gains. Accordingly cash account and commission account is credited. Okay, मैं जो अभी आपको ओरली बता रहा हूँ वो समराइज कर रहा हूँ इसलिए कि आपको ये ओरली बोलना आना चाहिए. ओके, चलो नेक्स्ट भी जो एक्टिविटी है वो भी करके देखते हैं ऐसा. हाँ देखो, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000. ओके, पहले 2 अकाउंट फाइंड आउट करा, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. नाउ 4 फिंगर, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट. देखो कैश को डेबिट है ना. देन कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ऑलवेज गिवर क्रेडिट. ओके, रूल बोलते रहना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर. देन नंबर 2, डिपॉजिटेड कैश विद देना बैंक 9,000. मतलब यहाँ पे 2 अकाउंट्स है, वन इज अ देना बैंक अकाउंट एंड अनदर इज अ कैश अकाउंट. डेबिट जो आता है ना वो हमेशा पहले बोलते हैं और क्रेडिट को बाद में बोलते हैं. ओके, ट्रेडिशनली बोलते हैं और कुछ नहीं. नाउ देना बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट. चलो, देना बैंक अकाउंट, रिसीवर, ओके, पर्सनल अकाउंट है वो, सॉरी, रिसीवर डेबिट. वाई डेबिट द रिसीवर. देन कैश अकाउंट, रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट, कैश को क्रेडिट मिला. ओके, देन द नेक्स्ट नंबर 3, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज. सो पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक पर्पज और सन्स कॉलेज फीस पेड,
पेड फॉर डॉटर्स मैरिज, ओके, ऐसा कुछ भी है ये ड्राइंग्स ही होता है. टू अकाउंट्स, ड्राइंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ऑलवेज रिसीवर डेबिट, ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज डेबिट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, गोज आउट क्रेडिट. ओके, इसलिए हमने ड्राइंग को डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर, और कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार फॉर ₹12,000. ओके, फॉर ₹12,000. यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन से हैं? परचेसेस अकाउंट एंड मंदार अकाउंट. नो कैश, इट इज नॉट मेंशन परचेज फॉर कैश. तो परचेज अकाउंट एंड मंदार अकाउंट. परचेज, अभी अभी सुनो, परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, गोज, सॉरी नॉट द कैश अकाउंट, आई एम सॉरी, मंदार, मंदार को बोल रहा हूँ, मंदार, सॉरी. हाँ चलो, मंदार अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ओके, पर्सनल अकाउंट है वो, ही इज अ गिवर, क्रेडिट. ओके, सो इन दिस वे नंबर 4 में परचेस को डेबिट आ गया, मंदार को क्रेडिट आ गया. नंबर 5, सैलरी, पेड सैलरी. पेड सैलरी 2,900. टू अकाउंट्स, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट. सैलरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, गोज आउट क्रेडिट. ओके, सो इन दिस वे आपको कोई भी ट्रांजेक्शन मिले, आपको इस तरह से ये सॉल्व करना है. देखो, मैंने आगे भी आपको एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम बताया. देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर एक्सरसाइज. आपके बुक में जो एक्सरसाइज है वहाँ से भी मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिया है, लेकिन मैं ये अभी आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला. यू प्लीज ट्राई. 12 ट्रांजेक्शन्स आर गिवन टू यू. 12 ट्रांजेक्शन आपको दिया है. आपको मैं 2 दिन का वक्त देता हूँ. ये आप सॉल्व करो, और ये सॉल्व करने के बाद इसका फ़ोटो निकालो और मुझे व्हाट्सएप करो. ओके, ये देखो, इस तरह से फ़ोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप करो. लिखो, फ़ोटो निकालो और व्हाट्सएप करो. ओके, सो यू कैन एक्चुअली, आई कैन चेक इट अप. देन देयर आफ्टर आई विल टेक द lecture for this also. Okay friends, now in my next lecture I will cover that exercise question number 1. okay, लेकिन उसको पहले आप ट्राई करो, फिर बाद में हम लोग मॉडर्न अप्रोच, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच था, मॉडर्न अप्रोच भी देखने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स.